Good morning, students. This is the part 3 of functions chapter. In this part 3, we are going to discuss the topic Python lambda. Basically, a lambda function is also a type of function which can take any type of argument but can have only one expression. As you can see here, we have written x, then we have written lambda a comma b, then colon a into b. What does it means? Whenever we are using it, automatically lambda में क्या होगा, a और जो b है वो multiply हो जाएगा. So how is it possible? We will write here x because in x it will return here the value. So x, then 5 comma 6. So here we will mention the value 5 into 6, answer will be here 30. So it can take any number of arguments. So here we can mention a comma b, two values are here, then colon we are putting here what is going to do. In one line we are using it. ये predefined function होता है, इसमें सिर्फ हम डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, and automatically it will print the value. So that is called lambda function. Now the next we have topic mutable or immutable properties of data object with respect to the function. Everything in Python, as you know very well, is an object, and every object in Python can be mutable or immutable. Mutable means you can modify the content or you cannot modify. Since everything in Python is an object, every variable hold an object instance. When an object is initiated, it is assigned a unique object ID and is type to be defined at runtime. Once it is created, it cannot be changed, and it is called it can once set it cannot never change, but however its state can be the mutable. Mutable means that can be changed at the time. Immutable means that you cannot change. Now what are the mutable object? As you know, list, dictionary, set, byte and array. Immutable we have int, float, complex, string, tuple, frozen, set and bytes. These are the immutable. Immutable means you cannot modify the content. List you can modify, dictionary also you can modify the content. Now the next topic, how objects are passed to the function. Mutable and immutable properties of data object with respect to the function. How objects are passed to the function. As you can see here, there are two methods, pass by reference and pass by value. Pass by reference means we are passing the address generally. So you can see here is a def update list. We are here passing a list actually. Basically we can pass the list, you know, list is mutable, and here we are passing the number is immutable, as you know. So mutable it will be changed. So in case of pass by reference means the variable value can be changed, and pass by value means the value cannot be changed. So now in the first part you can see here print id list 1. So it will print the data type actually, and then in list 1 we are adding here the value 10. Then again we are printing id of list 1. Then again we are taking now outside the function we are made a list n 5 comma 60. Then we are printing here the id, then update list we are calling, and we are passing here n, and again we are printing, again we are printing of id of n. Now what will happen, it will show you here the list. As you can see id of n. So here you can see in the above function list 1 is an object, it is being passed and its contents are changing because it is mutable. That's why it's behaving like as a pass by reference. Why these values are coming 34, 12, 29, 8. Generally you are passing here n equal to 50 comma 60. Then still you haven't called the value. So what will happen, automatically it will show you here the id. The id is the id means the address, memory address of the list. Id function help you to show the memory address of any data type. The role of the id function is that it can show the memory address basically of any data type like integer, list. So 34, 12, 29, 28, this is the memory address. Again you are writing here update list in bracket n. In this also we are printing here the address. The same address will be printing here because inside the function also the same list you are passing. So definitely जो आपका address होगा वो same होगा. Then now you are printing here list. So print n is there.
बट इनसाइड द लिस्ट एज यू कैन सी, जब हमने 10 को ऐड किया तो आपकी फिर से एक आउटपुट आ रही है, तो आपका एड्रेस वही है। मतलब जब भी आप कोई चेंजेस करेंगे लिस्ट में या डिक्शनरी में, तो उसका जो एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा, डेफिनेटली एड्रेस वही रहेगा, वैल्यू उसमें ऐड ऑन होगा। ठीक है, नाउ वी आर प्रिंटिंग हेयर द वैल्यू एज यू कैन सी। पहले वैल्यू क्या थी, 50 और 60 थी, अब फंक्शन की वजह से वैल्यू 10 भी आ गई है। Now again outside the function, as you can see here, print id n we have written. So now we are printing again the memory address. तो memory address हम 4 बार प्रिंटिंग करा रहे हैं और जो वैल्यू है वो एक बार करा रहे हैं। पास बाय रेफरेंस में क्या होता है, एड्रेस आप शो करा रहे हैं कि आपका जो एड्रेस है वो मॉडिफाई नहीं हो रहा है, वैल्यू मॉडिफाई हो रही है। ठीक है, वैल्यू कैन बी मॉडिफाई बिकॉज पास बाय रेफरेंस में आपकी वैल्यू मॉडिफाई होती है, इट कैन बी चेंज, पास बाय वैल्यू में नहीं होती। पास बाय वैल्यू के लिए डेफिनेटली हमें वही चीज़ लेनी होगी, जैसे कि आपने नंबर्स ले लिया, नाउ इसमें लिस्ट लिया था, इसमें आप नंबर ले लीजिए। डेफ आपने फंक्शन बनाया जिसमें एन को पास किया, आपने इसका फिर से वही एड्रेस प्रिंट कराया है, फिर से आपने इसमें वैल्यू स्टोर कराई है, सेम उसी टाइप का प्रोग्राम है, बस आपने वैल्यू रखना है लिस्ट के बजाय, सेम प्रोग्राम है। नाउ यू आर नोटिसिंग हेयर कि जो आपका नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा है, b=5 है तो वो 5 ही दिखा रहा है, वो 10 नहीं हो जा रहा है, या 15 उसमें अपडेट करनी थी वैल्यू, वो नहीं हो रही है। n+=10 का मतलब है n आपने b को रखा है और b आपका 5 है, तो 5 + 10 15, ये नहीं होगा। तो इन द अबव प्रोग्राम द वैल्यू ऑफ वेरिएबल b इज़ नॉट बी चेंज बिकॉज इट इज़ इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि आपकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। तो अभी हमने पढ़ा है पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। इस केस में क्या होता है, पास बाय वैल्यू में वैल्यू मॉडिफाई नहीं होती है, पास बाय रेफरेंस में वैल्यू मॉडिफाई हो सकती है, क्योंकि हमने लिस्ट का एग्जांपल लिया है एज यू हैव सीन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, पासिंग एरे और लिस्ट टू अ फंक्शन। वैसे अभी हमने सीख लिया है कि लिस्ट वो कैसे पास करती है, अभी हमने उसी प्रोग्राम में सीखा, लेकिन फिर भी एरे, now first of all we are passing arrays or list to a function. Arrays are popular in most programming language like Java, C, C++, JavaScript. In Python they are not that common. When people talk about the Python arrays, most often than not they are not talking about the Python list. Array of numeric values are supported in Python, that is called array module. Basically you can see here the array of numeric values also you can say a list. आप एरे की बात करो, एरे का अनदर नेम क्या है, लिस्ट ही होता है। बेसिकली एरे में भी आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ जो होती है वो होमोजीनियस होती है, मतलब सेम टाइप ऑफ वैल्यूज़ होती है। लिस्ट के अंदर भी यही होता है, लिस्ट और एरे बोथ आर सेम। एरे मीन्स अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ सेम टाइप, लिस्ट इज़ ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ सेम टाइप। नाउ यू कैन सी हेयर डेफ डू समथिंग, हेयर इज़ अ फंक्शन, द लिस्ट, आप लिस्ट पास कर रहे हैं, देन आपने फॉर लूप लिखा है जिससे कि आप लिस्ट की वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं। फॉर एलिमेंट इन द लिस्ट देन प्रिंट एलिमेंट। अब जब आप इसको लिखेंगे तो आपने नीचे जब फंक्शन को कॉल करना है तो ब्रैकेट में आपने 1, 2, 3 लिखा हुआ है। व्हाट डज़ इट मीन्स 1, 2, 3? तो ऑटोमेटिकली जब आप इसे कॉल करेंगे तो ये 1, 2, 3 आपको प्रिंट करके देगा, बिकॉज आपने फॉर लूप लिखा हुआ है। तो आपने फिर से लेकिन प्रिंटिंग कराई है, 2 बार प्रिंटिंग कराइए, इसलिए कराइए आपने ये दिखाना है कि आप एक और यहाँ पे लिस्ट पास कर रहे हैं जिसमें एक में नंबर है और एक में अल्फ़ाबेट्स है। अल्फ़ाबेट्स जब आप दोबारा से कॉल करेंगे तो ये आपको अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करके दे रहा है। और क्लियर इन्होंने लिखा हुआ है कि जब आप लिस्ट ले रहे, लिस्ट इज़ म्यूटेबल डेटा टाइप, दैट्स वाई पास बाय रेफरेंस, इट इज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द टॉपिक। ये आपको पहले ही पता चल चुका है, लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होती है, जिसकी वैल्यू आप कभी भी बदल सकते हैं, चाहे आप उसे फंक्शन में पास करें या नॉर्मली लिखें, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। सो अभी हमने ये सीखा फिर दोबारा से कि लिस्ट को कैसे पास करते हैं, ये पहले भी सीखा था, उसमें सेम प्रोग्राम था आपका। ठीक है, नाउ अब हम सीखेंगे पासिंग द स्ट्रिंग टू अ फंक्शन। वेरी सिंपल, जैसे आप नंबर पास करते हैं वैसे आप स्ट्रिंग को पास कर दीजिए। स्ट्रिंग कैन बी पास्ड इन अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, बट इट इज़ यूज्ड एज अ pass by value. It can be defined in the given program. As you can see here, def welcome, then title, it is written here, then hello title. टाइटल वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली हेलो के साथ ऐड हो जाएगी। फंक्शन के बाहर आपने आर को लिखा है मोहन, वेलकम फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर आर गया, आर क्या है, टाइटल हो जाएगा आपका।
तो वेलकम फंक्शन है, प्रिंट आर कर दिया तो मोहन आपका स्क्रीन पे प्रिंट होगा। फ़िलहाल हमने ये देखा कि आपका जो आउटपुट है उसमें हेलो लिख के नहीं आ रहा है। हेलो आएगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, टाइटल को उसी के अंदर प्रिंट कराना होगा, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट केस वी विल लर्न हाउ टू पास द टपल। जैसे लिस्ट को आपने पास किया था वैसे ही आप टपल को भी पास कर सकते हैं। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है अलग से डिफाइन करके, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिटली। नाउ यू कैन सी हेयर डेफ मैक्स माई टपल इज द नेम ऑफ द टपल। नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे 2 नंबर है जिसको आप टपल में ऐड कर रहे हो। टपल में आपने कोई वैल्यू नहीं दी, फर्स्ट कॉमा सेकंड लिख दिया इक्वल टू माई टपल। तो माई टपल में आप 2 वैल्यू पास करेंगे, जैसे आपने नीचे पास किए 3 और 1। जो 3 है वो फर्स्ट में जाएगी और जो 1 है वो सेकंड में जाएगी। अब फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर कर दिया, अगर ग्रेटर है तो फर्स्ट रिटर्न हो जाएगी, नहीं है तो सेकंड रिटर्न हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको क्लियर हो गई। तो ये टपल के थ्रू हो रहा है बिकॉज आपने आर में टपल की 2 वैल्यूज़ बनाई थी, वो दोनों वैल्यूज़ आपने कॉपी की फर्स्ट और सेकंड में, फिर आर पास आपने किया, फिर फंक्शन के थ्रू जो वैल्यू रिटर्न होगी या तो फर्स्ट की रिटर्न होगी या सेकंड की, इसीलिए आउटपुट आएगी अभी मैक्स वैल्यू क्या आएगी आपकी 3 आएगी ऑब्वियसली। तो आप इस तरह से टपल को पास कर सकते हो, और टपल मीन्स वैल्यू विल नॉट बी चेंज। But in case of the dictionary, you can also pass the dictionary also, but dictionary values can be changed because it is mutable property. Everything is an object, as you know. Dictionary can be passed as an argument to a function like other variable are passed. So dictionary बाहर बनानी होगी obviously। तो आपने एक function बनाया, फिर एक loop आप चलाएंगे जिसमें आप की और value को print करेंगे। वही एक loop चला है जिसमें आप की को भी दिखा रहे हो और value को भी दिखा रहे हो। फंक्शन के बाहर आपने एक डिक्शनरी बनाई, फिर आपने फंक्शन को कॉल किया, आउटपुट में आप देखिए पहले कीज़ आ रही है और फिर आपकी वैल्यूज़ आ रही है। देखो डिक्शनरी हो, लिस्ट हो, टपल हो, ये सब आपको पहले से ऑलरेडी यू नो हाउ टू क्रिएट इट। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट पासिंग ऑल दीज इनसाइड अ फंक्शन। ओके बेटा, देन वी हैव फंक्शंस यूजिंग लाइब्रेरीज, मीन्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शंस विच आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड। बेसिकली जो पहले से प्री डिफाइंड है, आपने क्रिएट नहीं करनी है, आपको बस उन्हें कॉल करना है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल फंक्शंस जो कि आपके मैथ मॉड्यूल में होते हैं, उसके लिए आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट द इम्पोर्ट मैथ। यू कैन सी द एग्जाम्पल लाइक यू हैव टू डू द स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन, इम्पोर्ट मैथ यू विल राइट, देन मैथ डॉट SQRT, देन ब्रैकेट में 4 आएगा। तो 4 मीन्स जो आपका रिजल्ट आएगा वो आर के पास आएगा, देन प्रिंट आर यू हैव रिटन, तो आर विल प्रिंट द आउटपुट ऑफ स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, सो इट विल शो यू हेयर द 2। नाउ हेयर आर द लिस्ट जो हमने क्लास 11th में भी लर्न किए हैं, और नाउ वी आर लर्निंग इन क्लास 12th। जो ये लिस्ट है इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अभी इसको एक एक करके करना है, फ़िलहाल मैथ वाले तो सारे करने हैं, आगे जो स्ट्रिंग वाले हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो है हमें वही डिस्कस करना है। नंबर 1 सीलिंग, नंबर 2 फैक्टोरियल। सीलिंग का मतलब होता है आपको ये स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर रिटर्न करके देगा, लाइक आपने लिखा है मैथ डॉट सील ब्रैकेट में 4.2, तो ये नियर बाई नंबर को राउंड ऑफ करके देगा, 4.2 का मतलब होगा 5। फैक्टोरियल अगर निकालना है, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 24, तो यू विल पास द नंबर हेयर। फ्लोर इज़ द अपोजिट, फ्लोर और सीलिंग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सीलिंग मीन्स इट रिटर्न द नंबर विच इज़ विल बी ग्रेटर देन विच इज़ द गिवन नंबर। 4.2 है तो उसका 5 हो जाएगा, और अगर सीलिंग कर रहे हो आप, सॉरी फ्लोर कर रहे हो, फ्लोर का मतलब तो डाउन हो जाएगी वैल्यू, सीलिंग मतलब अप हो जाएगी वैल्यू, 4.2 का मतलब 4 हो जाएगा। देन वी हैव अदर फंक्शंस जिसमें से हमें मेन पावर देखना है, स्क्वायर रूट देखना है, साइन, कॉस, पाई। अगर आपको पाई की वैल्यू चाहिए तो आप सिर्फ पाई लिख सकते हैं, तो आपको पाई मिल जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द प्री डिफाइंड मैथ्स फंक्शन। नाउ वी हैव इन क्लास 11th वी हैव डन स्ट्रिंग फंक्शन, many string functions we have done, it is available in the Python standard module, जिसके लिए हमें कुछ import नहीं करना है, डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। like s dot capitalize, what will happen, every first letter will be capital in this case. Then we have others. Why we are not doing the example, because we have already done in class 11 capitalize, to capitalize the first letter, center, count, find, index,
You can see here the definition, it is already written there. Okay, returns a center integer. Then we have here, you can see the rest of the string function like is lower, is upper, join, lower, lstrip, is lower, is numeric, is space, is title. All the is function basically check the value either true or false on the basis like is digit, ये check करेगा digit है कि नहीं, उसके बेस पे आपको ये आंसर बताएंगे. Is decimal, is join, so all are the basically list function as you can see. So now the last function is your upper. It doesn't mean हमें सारे करने, इसमें से जो हमारे सिलेबस में थे वो हमने ट्राई किए. ठीक है बेटा. Now variable scope in function. We have the variable scope, type of variable basically. The first is the local variable, second is the global variable and third is the non-local variable. लोकल वेरिएबल का मतलब होता है वो वेरिएबल जो आप फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हो, द वेरिएबल विच यू आर क्रिएटिंग इनसाइड अ फंक्शन. एज यू कैन सी हियर इज अ प्रोग्राम डेव फंक्शन एस आई लव इंडिया. दिस इज़ योर लोकल वेरिएबल बेसिकली, क्योंकि आपने वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनाया है. प्रिंट ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है, देन आउटसाइड द फंक्शन आपने एस की वैल्यू पास की है. ये लोकल वेरिएबल नहीं है, इट्स अ टेम्परेरी वेरिएबल जो आप बाहर यूज़ कर रहे हो. जो अंदर वाला एस है वो लोकल है तो वो अंदर ही रहेगा, ये बाहर जो है वो आपका टेम्परेरी है. नाउ फंक्शन आपने कॉल किया, प्रिंट एस आपने लिखा तो आई लव. जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो आएगा आई लव इंडिया, और जब आप ये बाहर वाला एस जो है टेम्परेरी इसको प्रिंट कराएंगे तो आएगा आई लव वर्ल्ड. तो लोकल वेरिएबल जो है वो अंदर वाला वेरिएबल फंक्शन के अंदर ही यूज़ हो रहा है, बाहर नहीं तो वो वैल्यू को ओवरराइड कर देता है. ये हमने देखा यहाँ पे. नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लोबल वेरिएबल. Global variable is accessible inside the function, outside the function, anywhere in the program. Global मतलब जो हर जगह पे है, everywhere. उसको create करने के लिए you have to write the global keyword. So here you can see def function we have written, then global s. Global s means this is the global variable. Print s किया तो ये ग्लोबल वैल्यू आपको शो करेगा, और ये वैल्यू आप कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हो. देखो फंक्शन के अंदर भी एक वैल्यू है आई लव इंडिया, प्रिंट एस किया. फंक्शन के बाहर भी एक वैल्यू है आई लव वर्ल्ड. जब आपने फंक्शन को कॉल किया है तो ये आपको क्या वैल्यू शो कर रहा है, इट विल शोइंग यू आई लव वर्ल्ड. जब आपने प्रिंट एस किया इट विल शो यू हियर आई लव इंडिया. एज यू कैन सी I love India is coming here 2 times. Why it is 2 times? क्योंकि एक बार फंक्शन है और एक बार और प्रिंटिंग है. यस, जब आपने ग्लोबल एस किया तो ये पहले नॉर्मल प्रिंटिंग हो रही है. नॉर्मल प्रिंटिंग मतलब सबसे पहले ये प्रिंट करेगा आपके सामने जो आपने आई लव वर्ल्ड लिखा है वो प्रिंट करेगा, और ये वैल्यू फंक्शन के अंदर भी गई, लेकिन बाद में आपने वैल्यू को चेंज कर दिया, ये हो गई आपकी आई लव इंडिया. तो अब करंट वैल्यू आई लव इंडिया रहेगी. तो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू आप कहीं पे भी चेंज कर सकते हो, फंक्शन के अंदर भी बाहर भी, और ये हर जगह पे एक्सेसिबल होगा. दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल. नॉन लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो नॉर्मली नॉन लोकल कीवर्ड से भी आप लिख सकते हो. एक्चुअली दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, हमें सिर्फ 2 ही करनी है, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल. नाउ एज